Good evening, friends from the media. I take this opportunity to welcome all of you to today's press briefing. I welcome you. Is it working? Not working. I welcome all of you to today's press meet with all of you, and most importantly, on behalf of the National President of the Nationalist Congress Party, respected Shri Sharad Pawar ji, I would like to welcome on his behalf and on behalf of the party a very distinguished leader of our country coming from the state of Kerala. His name is, of course, well known to all of you, Honorable Shri P.C. Chacko, a very eminent political leader, as I said, not only of Kerala but of the country, well known, well respected, well regarded. He started his career as the Youth Congress President in Kerala. From there on, he went on to become a legislator in the state and the Industries Minister of Kerala. After that, he was elected to Lok Sabha 4 times. And besides that, he has been associated with many organizations. He has connections with many institutions in Kerala, where especially he's running very successfully a cooperative bank, which is rendering very good service to the people there. I would like to therefore state that, I can read many more things about Shri P.C. Chacko, but a very distinguished leader, somebody who has been well regarded in Kerala and in India. As all of you know, in Delhi especially, he was looking after affairs of the Congress Party in Delhi also for many years. So such a distinguished colleague of ours has decided formally to join the Nationalist Congress Party as of today, and therefore on behalf of Sharad Pawar ji and the entire NCP fraternity, the family, we warmly welcome Shri P.C. Chacko, and I would request our Honorable Leader Sharad Pawar ji to welcome Shri P.C. Chacko by giving him the NCP sash and also a bouquet of flowers. In fact, I'm very happy. I got a call from Kerala. The Chief Minister of Kerala. Chief Minister of Kerala. He contacted me and expressed his happiness. In fact, he said that Mr. Chacko is joining NCP. It's not question of only NCP, but entire left-front colleagues in the Kerala are extremely happy because this basic decision is taken or going to announce today by Mr. Chacko. He also requested
Now the entire Kerala political parties are extremely busy with campaign for these assembly elections. And it's desire of the Chief Minister in this campaign, his suggestion, his request, Mr. Chako should spare some more time, and his presence, his participation in election campaign will be very, very useful for the fund. And that's why, on behalf of the fund, entire the fund, he conveyed to me to convey all of you their joy, their happiness, and welcome to Mr. Chako. पहिला दीपक पहिला दीपक एक Thank you, sir. Yes, I will be. Thank you. All the best. Welcome. Thank you. Please give the mic to Chaku. Chaku. Just press it. And then speak. No, above one. The red one. Just press it. Sharad Pawar ji, leaders of the NCP and their friends from the press. I am extremely happy that I am welcomed to the NCP fold by the senior most politician of the country, Pawar Saab. I am happy to be in the NCP because I had a long association with the NCP, and so this is not a new experiment. Probably I can feel this as a homecoming. In fact, many difficult situations the Congress party has been passing through. I had the privilege and I had the opportunity to work with Pawar Saab in the most difficult days for the Congress party. Subsequently, we were in two parties and I have been working for the Congress party. Most of you are very close to me, and when I was in charge of Delhi for the ICC. Today I feel, I'm not going into the reasons why I left Congress party and joined the NCP, but briefly I can tell you that today what is needed is the unity of the opposition, and the united opposition should emerge as an alternative against the BJP. I want to say that I do not see that initiative very much from the party in which I was a member. And I'm sure that Pawar Saab, his seniority, his leadership, and his contact will be most effective in forging a unity of the opposition in this country against the misdeeds of the BJP government. So I'm happy to be here in a party which is a functioning party, which is an active party, a party moving with direction. I am grateful to Pawar Saab, to Prabhuji and all the office bearers of the NCP that I am getting this opportunity to associate with them and work for the future. As Pawar Saab said, I come from the state of Kerala, and Kerala is a political fight between two united fronts. One is UDF led by Congress and one is LDF led by CPM. So the NCP is a partner of the LDF, Left Democratic Front, for the last 40 years. I was also then part of the LDF at that time, as part of the erstwhile congresses at the NCP. So my association with CPM or the left parties are not a new thing. In fact, 40 years back, we only mooted the idea of a left and democratic unity in Kerala. We formed an alliance with the left parties in Kerala, and we fought an election. We became successful, and I was also a minister in the cabinet of Mr. Nayanar, the senior leader of the Communist Party. Today, when I join NCP, I become part of the LDF. As suggested by Pawar Saab, I have given the direction that I should be traveling throughout the state of Kerala and work for the LDF. LDF, of course,
I have been on the other camp. But the country needs today the left unity, and the left and the Democratic parties come together to forge a unity. In that angle, I think that, it is the duty of every, citizen of the country to support a coalition of that kind. So, as a member of the NCP, I will also be, from tomorrow onwards, I will be touring the state of Kerala and will be working for the LDF. Today, the Chief Minister of Kerala called Pawar Saab and requested that I should be campaigning for the United Front. I promised Pawar Saab that LDF will come back to power in the state of Kerala, and I will work hard for the success of the LDF. NCP party all over India, wherever it is weak, people expect that a party with Congress culture has to emerge. They should lead the unity of the opposition. And people are looking for the leadership of Pawar Saab. And I'm extremely happy to be working under him. I thank him once again. And I will be working as a true soldier of the NCP from today onwards. I thank all of you. Once again, I thank Pawar Saab and all other colleagues. Thank you very much. Sir, Pawar Saab, सर मेरा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि चाको साहब के आने से कांग्रेस एनसीपी से बहुत नाराज हो जाएगी? यूपीए का हिस्सा आप दोनों पार्टियां हैं और कांग्रेस में थे, आपकी पार्टी में शामिल हुए। और दूसरा सवाल यह है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत। महाराष्ट्र में आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार में हैं और केरल में आप यूडीएफ के खिलाफ, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, उसके खिलाफ होंगे। तो बीजेपी को आप पर हमला करने का मौका मिला। पहले से कई राज्यों में कांग्रेस और हम अलग करते हैं, और जहाँ बीजेपी के साथ इनके खिलाफ मजबूती से एक अल्टरनेटिव तैयार करने की नौबत जब आती है, ये स्थिति पैदा होती है, तब लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम बैठने के लिए मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम के आधार पर हमेशा तैयार रहते हैं। कांग्रेस भी तैयार रहती है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। इस स्थिति के अनुसार हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने डिसीजन लेते हैं। यही बात यहाँ की है। जहाँ तक केरला की बात है, जैसे प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया और ठाकुर साहब ने बताया, पिछले 30-40 सालों से हम साथ हैं। आज भी वहाँ का जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट है, इसमें मिनिस्ट्री में एनसीपी के एक हमारे सहयोगी आज भी मिनिस्टर है, पिछले 5 साल से मिनिस्टर है। कई सालों से हम साथ काम करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। सर, सहमत है? ठाकुर साहब ने कहा कि आज एक फ्रंट की ज़रूरत है जो बीजेपी से लड़े, और कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी ये करने में असमर्थ है। ऐसे में वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनके कारणों से? क्या आप मानते हैं वाकई में कि कांग्रेस असमर्थ है एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी? नहीं, कुछ राज्यों में अभी समझो वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल फॉर इंस्टेंस, हम लोगों को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल में आज की स्थिति में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप अपने पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, ये सब देखने के बाद कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का कोई आदमी हो या पार्टी हो, इनकी जिम्मेदारी है कि ममता जी को जाकर साथ करे। इस तरह का अप्रोच हमने लिया है जगह जगह पर। ये हमारा अप्रोच है। जहाँ खाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मजबूती से खड़ा रहने की बात आती है, तब बाकी सब बातें छोड़कर हम इनके साथ जाते हैं और जाने की तैयारी इसके आगे भी हमारे हमेशा रही। पवार साहब ये भी कहा गया कि यू आर नॉट हैप्पी विद। सर, आपको नहीं लगता है कि एक थर्ड फ्रंट कांग्रेस अगर नहीं कर पा रही है, आप कह रहे हैं और राज्यों के अंदर एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए और एक यूनाइटेड लीडर उस थर्ड फ्रंट का होना चाहिए, अगर कांग्रेस को आपको लगता है राष्ट्रव्यापी उस तस्वीर में नहीं उभर रही है?
बात ऐसी है कि हमारा डायलॉग बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमेशा होता है, मगर अभी तक इसको जो शेप देना है थर्ड फ्रंट या कुछ अल्टरनेटिव, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। मगर ये इसकी आवश्यकता है, ऐसी बात हमारे कई साथियों की। अभी यहाँ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे सीताराम येचुरी साहब ने कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि चाको साहब का तो हम स्वागत करते हैं, मगर इस माध्यम से एक अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव विचारों की विचारधारा की कोई मंच खड़ा रहेगा, तो इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है और आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा सलाह उन्होंने दिया है। तो ये विचारधारा, इस तरह की बात हमारे कई साथियों के मन में है, इसकी आज देश को आवश्यकता है। जैसा एक स्पेकुलेशन पीछे था कि कांग्रेस का विकल्प के तौर पर एक ऑपोजिशन का फ्रंट बने, उसका चेहरा आप हो सकते हैं, 2024 से पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को हटा ऐसे विकल्प बन सकता है? ऐसी कोई बात हुई नहीं, मैं किसी को चेहरा सामने करने के बारे में कुछ सोच नहीं है, और जब तक इस बारे में कोई स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि एक अल्टरनेटिव मजबूत मंच प्राकृतिक विचारों का तैयार करने की बात करने का जो प्रस्ताव कोई भी जब साथी देते हैं तो हम इसकी गंभीरता से नोट लेते हैं। सर, ये भी कहा गया कि महाविकास अघाड़ी में प्रॉब्लम्स चल रही है और अनहैप्पी विद उद्धव ठाकरे ओवर हिज सपोर्ट फॉर सचिन वाजपेयी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ की जो फ्रंट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलकर चलते हैं। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर वहाँ के सभी महाविकास अघाड़ी के साथी हैं, तो उनके साथ काम करते हैं। कुछ समस्या इधर उधर की आती है, वो बैठ कर रिजॉल्व करते हैं। रिपोर्ट्स भी है सर, जिस तरह ये सचिन वाजे वाला पूरा प्रकरण सामने आया है, एनआईए ने गिरफ्तार किया और जो खुलासे हो रहे हैं, और ये भी एक फैक्ट है सर कि सचिन वाजे शिवसेना के बड़े करीबी रहे, उद्धव ठाकरे के बड़े भरोसेमंद अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं। इस पूरे प्रकरण पे आपको क्या कहना है सर? क्या इससे महाराष्ट्र सरकार की साख प्रभावित नहीं होती है सचिन वाजे प्रकरण एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का इम्पैक्ट पूरे स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर होगा, इस पर हमारा बिल्कुल विश्वास है। एक और दूसरा, जहाँ तक इनकी इंक्वायरी वगैरह जो कुछ बातें आती है, इस पर मैं कोई बात करना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि नेशनल एजेंसी आज इस पर ध्यान दे रही है। एक नेशनल एजेंसी इस सभी इशू में इन्वेस्टिगेशन पर जब लगी है, तब हम लोगों का फर्ज है कि उनको सहयोग देना। इनके जो काम चालू है इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इस पर ध्यान देना। और जिन लोगों ने अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, कोई गलत काम किया है, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए नेशनल एजेंसी कुछ काम करती है, तो उसको पूरी तरह से मदद करना, इसमें महाविकास अघाड़ी में कोई दो राय नहीं है, टोटली यूनानिमिटी। आपने उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी सर पिछले दिनों में, क्या आपने उद्धव ठाकरे को कुछ निर्देश दिए इस मामले को लेकर के? आपने क्या बात की उद्धव ठाकरे से? बात हम जब हमेशा मिलते हैं, बातें करती है, तो सब मीडिया के लिए होती है, मगर महाराष्ट्र के कुछ राज्यों की कुछ इश्यूज थे, इस इश्यूज पर कैसे काम करना, कैसे रिजॉल्व करना, भारत सरकार के पास से कुछ इश्यूज पर हमें मदद चाहिए, तो भारत सरकार के साथ कैसे बात करना, कौन बात करेगा, ये सब इश्यूज पर हमने बात की, दूसरा कुछ बात नहीं। सर, ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि होम मिनिस्टर विल बी सैक्ड बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंसी ओवर दिस केस, इज इट ट्रू सर? होम मिनिस्टर विल बी सैक्ड। हरीश देशमुख क्या है? अच्छा, दिस इज न्यूज़ टू मी। सर, इसी बात पे सवाल ये है कि हाउ डू यू थिंक द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैंडल दिस केस? इसी केस के ऊपर हाउ डू यू थिंक, आपको कैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये केस को कैसे हैंडल किया है, आपकी राय? अच्छे हैंडल किया, इसीलिए सब एक्सपोज हो गए। वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उन्होंने पूरी तरह से संभाली, और इसमें जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको लोकेट किया, उनको एक्सपोज किया, और सख्ती से कदम उठा सकते हैं ये दिखाया, इसका लाभ ही हो।
चलिए हो गए। सर परमवीर सिंह को इस्तीफा लिया जा रहा है सर, जो पुलिस आयुक्त है परमवीर सिंह, उनका इस्तीफा लिया जा रहा है। अरे ये भाई कैसे बताएगा, आपको सीएम साहब को पूछना चाहिए। वहाँ का ऑफिसर कौन पोस्टिंग होगा, जाएगा, प्रमोट होगा। आपकी वहाँ सरकार है, आपके दोनों की चर्चा से निर्णय होते हैं, इसलिए पूछे। ऐसे कुछ हमारी डिसीजन डेवलपमेंट की पॉलिसी के बारे में हमारी बात होती है। किसी को अपॉइंट करना, किसी को ट्रांसफर करना, इससे हम दिलचस्पी लेते नहीं, इससे हमें इंटरेस्ट नहीं। But the arrest was done by the NIA and not the state government or the state police, sir. No, it started from police, state police, and NIA come after. So why did it not arrest Wazir then, sir? But it takes 1 or 2 days, no? No, in fact, the process started by Bombay police. And when they got a request from NIA, it should be transferred to them, we, without any hesitation, transferred to them. सरकार से कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आसाम में बीजेपी जीत रही है। आपने ऐसा बयान दिया था कि आसाम में ही सिर्फ बीजेपी जीतेगी। सच बात ये भी है कि आसाम में ही सिर्फ हमने ये बताया कि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है दूर से कि वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में बीजेपी को कोई चांस दिखाई देती नहीं। बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाई जो देती है वो असम में दिखाई देती है, ये बात सच है। मेरा सवाल राहुल गांधी पे है। केरला के एमपी है राहुल गांधी, क्या आपको लगता है उनका इम्पैक्ट नहीं हो पाया? पहली बार असेंबली चुनाव हो रहा है जब वो एमपी बने केरला से, तो क्या क्योंकि ऑल्टरनेट रहा है हमेशा केरला में, तो केरला में हम लेफ्ट फ्रंट के साथ, तो लेफ्ट फ्रंट में हमारे साथ जितने पार्टी है, जितने साथी है, इनके बारे में हम सोचते हैं। अन्य पॉलिटिकल पार्टी वहाँ भी है, उनका अधिकार है, वो काम कर सकते हैं, पर उनका क्या चला है इसका कोई हमें पता नहीं। हम लेफ्ट फ्रंट कैसे जीतेगी इस पर हमारा ध्यान है। थैंक यू। Anything for Mr. Chapo? No, Pawar साहब का हो गया। सवाल आपसे एक सवाल। सर चाको सर आपसे सवाल है। If there is anything for Chaco, you can ask. कल्चर की जरूरत है, तो क्या जिस कांग्रेस को आप छोड़ के अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए हैं, वो क्या अपना कल्चर खो बैठी है? आपने कहा कांग्रेस कल्चर की, अगर बीजेपी को अगर वो करना है, पवार साहब ने बोल दिया। I don't think it is to be explained, you know, because you know, Pawar Saab is the senior most leader of the Congress party in the country. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे